आप अपने विषय में कुछ बताइए। Sir, my name is Aman Kumar Singh and I am from district Chandoli of Uttar Pradesh. I did my schooling from St. Francis School, Ramnagar, and I have done BTech in Computer Science Engineering from AKTU. My hobbies are playing cricket and watching cricket. I have worked as a SAP developer for 1.5 years, and since then, since 2019, I have been preparing for civil service examination. So what is SAP developer क्या होता है? Sir, SAP is basically a system administrator and programming. Suppose that if there is any corporate or any big firm, so they have to maintain various type of data, like financial data. So SAP they create ERP solutions for them. Suppose that how many working days any employee came to office and what is his pay scale. So all such things which SAP create. Computer science BTech. Yes. Okay. And your optional subject? PSIR, Political Science and International Relations. So how come this initially computer science, thereafter political science and international relations? Sir, because in UPPCS optional mains list subjects, none of the computer science subject is mentioned. So I chose PSIR because in GS paper 1, 2, 3 and 4, I think major chunk of PSIR are present, and that's why I choose PSIR as the option. There is a term gun mode diplomacy. Yes, sir. What do you mean about that? Sir, gun mode diplomacy, I think, sir, this concept was popularized by US, and when George W. Bush was the president, at that time it was said that he introduced democracy in many Arab countries as well as in Afghanistan or other countries. So he wanted to establish democracy, and that's why his policy was termed as a gun mode diplomacy. Since you have a background of computer science, so how will you use it in administration? How come it would be relevant in your administration point of view? Sir, nowadays government is lot focusing on e-governance. I think with the help of computer science, I can deliver in much better way. Suppose that there is a land record digitization. In India, around 70% cases civil suits are related to land. So in land record digitization, I can do something. And in public delivery service, like sir, the main problem in India is there is a leakage in delivery system. So I think with the help of technology, we can deliver the things to the intended beneficiaries without leakage. Yes. Okay, that's fine. You will remove the leakages and other things. But what are the negative aspects of technology? Sir, cyber security is the main threat because I think in India cyber literacy is very low. So people need to know more about cyber, and I think this is the first aspect. And second aspect is a digital divide. The problem of digital divide is very big because some people they have luxury to use technology, but other people they are deprived. So this is the biggest problem. So your service preferences are? Sir, SDM, DYSP, EO, DPRO and BD. EO का क्या कार्य क्षेत्र होता है? Sir, Executive Officer. Yes, sir. तो ये क्या करता है? ये इसके क्या काम होते हैं? Sir, I think it will be related to something execute the policies of government. You are not exactly knowing the process of the particular function. Yes, sir. Okay. And you are from Bhadohi? No, Chandoli district. Yes, sir. So what would be your commissionerate? Varanasi. Who is commissioner right now? Sorry, sir. Who is your district collector right now? Sir, sorry, sir. Duly transferred, sir. 2 days. What is I your said Neha, Srimati Neha, I think. Neha Sharma. No, she is not there. She is in Lucknow right now. I think the first posting in Chandoli. Neha girl or something? So she is 2014 IS batch officer, Okay. and earlier she was in DD in Varanasi Development Authority, and currently. And what is your ODOP product in case of Sir, your district? Jari Jaldoji, Chandoli. How many other districts having the same product?
which are competing in your district? Yes, sir. Many of them. Name of few. Sir, I think in Western UP also, one district, I think Shamli has the same Jari Jarduli. Okay. Have you heard about PLI? Yes, a production linked incentive scheme. How many sectors have been chosen for that? Sir, exactly in number I can't say, but I know manually. Like in semiconductor manufacturing, we have introduced PLI scheme. In textile also, like sir, there is one policy, one scheme of government, Prime Minister Mitra scheme for textile. So in it also there is production linked incentive scheme. In renewable energy sector also there is a PLI scheme. So sir, main objective of PLI scheme is to boost the manufacturing ability of India and to increase the export capability. So this scheme was introduced. अच्छा, अभी हाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, Yes sir. बहुत चर्चा में रहा, Yes sir. तो उसको आप कैसे देखते हैं, उसमें क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं? What are the prospects in it? सर, किसी भी प्रदेश के लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उससे जब कैपिटल क्रिएशन होता है तो उससे क्या होता है कि रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। और सर यूपी इतना बड़ा है, तो उसमें क्या है कि रीजनल इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा है। तो अब इन्वेस्टर समिट से, अब जैसे हमारा जो जिला है चंदौली, तो उसमें भी सर 1871 करोड़ के आसपास का निवेश है। तो इससे सर फायदा है कि हर जिले को, जो 75 डिस्ट्रिक्ट है उन सबको फायदा है। लेकिन सर इसमें जो सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो ये है यूपी में कि पहले तो सर रेट टैपेज एक इशू है, दूसरा सर लैंड एक्विजिशन पॉलिसी उतनी लिबरल नहीं है। जैसे ईस्टर्न यूपी में जो लैंड है वो लोगों के लिए लाइफ है, वहाँ पे प्रोडक्शन लोग अपना करते हैं, जो फार्म प्रोड्यूस है। अभी काफी उसका जो मुआवजा है वो भी बाजार से काफी सर उसके बाद भी लोग नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद भी नहीं, उसके बाद भी नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे मुद्दों पर आप आप एसडीएम होंगे वहाँ पे, लैंड एक्विजिशन के लिए आपको कहा जाएगा कि एक्विजिशन करवाए, तब आप क्या करेंगे? सर उसके लिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है स्वामित्व स्कीम, उससे सर क्या हो रहा है कि एरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात, हम यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी आप एसडीएम हैं, वहाँ पे लैंड एक्विजिशन के लिए कहा गया है, ऊपर से शासन से आया, आप क्या करेंगे? और आपका कोई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, किसान जमीन नहीं दे रहे, क्या करेंगे आप? सर उसके लिए पहला जो काम ये किया जाएगा कि पहले ये मैप किया जाएगा कि कहाँ खाली जमीनें हैं। जैसे सरकार के पास ऐसे थोड़ा टेढ़े मेढ़े जाएगा। यस सर। तो सर तो सीधे जाएगा। यस सर। तो सर एक कास्ट बहुत आ जाएगी। सर एक गवर्नमेंट का एक एक्ट पास हुआ था, LARR एक्ट। तो सर उस जो एक्ट है कि जिसमें अगर जो नॉर्मल किसान की जमीन है तो उस पर मार्केट रेट का 4 गुना उनको दिया जाता है। तो सर उस स्कीम को जो है, उस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, वो जो फार्मर्स हैं उनसे जो है कम्युनिकेट करके उनको बताया जाएगा। और उनको बताया जाएगा कि अगर इस क्षेत्र का अगर विकास होता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, तो उससे आपको फायदा होगा। जैसे सर जेवर है, जैसे आपने अभी कहा कि पूर्वांचल वाले जमीन नहीं देना चाहिए, तो आप कैसे कन्विंस करोगे आप? सर क्या हम ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स पर काम करें जिससे वो थोड़ा सा मोटिवेशनल एस्पेक्ट दिया, क्योंकि हम जबरदस्ती छीनेंगे तो वो रिसेंटमेंट होगा और नंबर ऑफ अदर थिंग्स विल स्टार्ट। बट हम जैसे कि आपने कहा मार्केट से हम लिंक किए, उसको 4 गुना हम मार्केट का दे रहे हैं, फिर भी लोग नहीं आगे आ रहे हैं, क्योंकि वो लैंड को बिल्कुल ऐसे सोल अटैच करके मानते हैं। यस सर। अगर थोड़ा कभी डेवलपमेंट एस्पेक्ट पर लैंड तो चाहिए, उसको और अच्छा प्रमोट करने के लिए क्या डायमेंशन पर काम करना चाहिए? सर मेरा मानना है कि पहले उनके अंदर ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले उनको करना चाहिए। और सर उसमें क्या है कि उनको उचित मुआवजा टाइम पे मिले, और एक सरकार की तरफ से भी एक एश्योरेंस उनको रहे कि वो मतलब कंट्रीब्यूटर हैं, जो सोशल इकोनॉमिक या जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो उसके कंट्रीब्यूटर हैं। तो ये चीज़ें उनसे कम्युनिकेट की जानी चाहिए। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, जैसे कि ये इन्वेस्टर समिट के साथ साथ पैरेलल एक और बहुत लखनऊ चर्चा में रहा है, G20। यस सर। G20 क्या है? सर G20 जो वर्ल्ड की 20 बिगेस्ट इकोनॉमीज हैं उनका एक कोलैबोरेशन। यस सर। उसी में एक इमर्जिंग 5 भी कॉन्सेप्ट चलता था बहुत पहले, इमर्जिंग 5 इकोनॉमीज।
यस सर, उसमें सर ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो ये सर ये जो पांचों कंट्रीज हैं इन्हें इमर्जिंग इकोनॉमी में है। आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं? यस सर। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सर इंडियन एक्सप्रेस। अच्छा, कितनी जगह से पब्लिश होता है? सर लखनऊ, सर उतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, जैसे लखनऊ है, यूपी में लखनऊ से। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए कि 5 न्यूज़ बताइए आज की जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगती हो आज के न्यूज़। और उसमें एक इंटरनेशनल, एक नेशनल और एक यूपी की। अच्छा, एटलीस्ट तो सर यूपी का तो ये है कि जो 22 फरवरी है उसमें बजट पास होना है, तो उसमें ये है कि जो मीडिया में जो खबरें आई हैं कि ज़्यादातर फोकस जो इलेक्शन है 2024 में तो यूथ पे और विमेन पे रहेगा। एक सर यूपी की ये न्यूज़ है, और सर इंटरनेशनल न्यूज़ में सर उतना भी रिकॉल नहीं हुआ। नेशनल सॉरी सर, रिकॉल नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, पॉलिटिकल साइंस है आपका, यस मैम। क्रिकेट आपको पसंद है, यस मैम। तो ये महिला प्रीमियर लीग क्या है? मैम महिला प्रीमियर लीग बेसिकली जैसे इंडियन प्रीमियर लीग है उस तरह से विमेन प्रीमियर लीग इंडिया ने किया है, जिसमें 5 टीमें बनाई गई हैं, और बेसिकली एक तरह से ये पहले से चल रही है क्या? नो मैम, ये इंडिया ने पहली बार किया है। उसके पहले बिग बैश में ऑस्ट्रेलिया की थी, लेकिन एक तरह से ये इंडिया का स्टेटमेंट है पूरे वर्ल्ड को कि पहले उसका नाम होता था, रखने का जो प्रोविजन था कि विमेन इंडियन प्रीमियर लीग रखेंगे, लेकिन उसमें से आई हटाया। मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक ग्लोबल ब्रांड बना रहे हैं। यस मैम। अच्छा, दूसरी ये बताइए कि अभी हमारे यहाँ इस साल 2023 में कई विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो कुछ आइडिया कितने स्टेट के होंगे और स्टार्टिंग कहाँ से हुई? अभी तो मैम त्रिपुरा में हुआ है चुनाव, और अभी कई सारे जगहों पे होगा, जैसे भी कर्नाटक में चुनाव होंगे इस साल। एग्जैक्टली कितने हैं स्टेट में? मैम आई थिंक इन 9 स्टेट। सात के बारे में क्या? सात में कौन से? मैम सार्क एक साउथ एशिया का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 8 कंट्री हैं, और जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, ऐसे कुल 8 देश हैं। मिडिल ईस्ट में कौन से कंट्रीज आते हैं? मैम एशिया के उसमें? अच्छा मैम, उसमें यूएई है, सऊदी अरब है, और उसके बाद उसमें ईरान है, इराक है, कुवैत है, बहरीन है, इसमें कई सारे कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में। करंट रेजिम में, बिल्कुल। करंट पॉलिटिकल रेजिम में आपको कौन लीडर सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है? किसका व्यक्तित्व आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है? वैसे सर हमारे देश में जितने भी लीडर हैं वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ग्राउंड से ही आए हैं, बेसिक से, लेकिन मेरा मानना है कि जो इस समय मतलब एक जो परसेप्शन भी है, मेरा मानना है कि नवीन पटनायक जो है उन्हें बहुत अच्छा लीडर माना जाता है, क्योंकि वो ऐसे स्टेट के सीएम हैं जो हमेशा साइक्लोन आता है और उसके बाद भी वो हर बार उनकी जो मतलब हर बार जीत के आते हैं और उनका जो वोट शेयर होता है वो हर बार इंक्रीज कर जाता है। तो आपके सीएम फेलियर है? नहीं सर, मतलब कि यूपी के सीएम सर यूपी के सीएम भी सर बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो भी हैं डिजर्विंग, क्योंकि सर पीपल मैंडेट से वो आते हैं, तो वो आपको नवीन पटनायक पसंद है? बायोकॉन के बारे में कुछ चाहिए? बायोकॉन सॉरी बेंगलोर की, उसे अभी कई अपने जो प्रोजेक्ट भेजे थे फॉरेन में उनको वापस मंगाया है कि वो लैब्स नाम है। अच्छा, कास्ट आइडेंटिटी होती है, कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे मतलब ओवरऑल डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत करती है? सर बेसिकली इस पे जो सबसे बढ़िया जो ओपिनियन दिया था वो रजनी पठारी ने दिया था। तो सर उनने कहा था कि कास्ट, यस सर, तो सर कास्ट आइडेंटिटी, जैसे अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तो उसमें डेमोक्रेसी केवल इंडिया में ही सर्वाइव की है, क्योंकि अदर कंट्रीज में क्या हुआ है कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हुई है और उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉम्प्लेक्स जो क्रिएट हुआ है उससे डेमोक्रेसी फेल्ड हो गई है।
लेकिन सर इंडिया में जो कास्ट है वो उसने कई कई स्तर पे काम किया है। जैसे एक सर अगर स्तर पे बात करें तो सेक्युलराइजेशन का काम किया है। जैसे सर अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल अगर जमीन पे देखें तो बोलते हैं कि ब्राह्मण और दलित के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में देखिए तो 2007 में ब्राह्मण और दलित मिलकर यूपी में सरकार बनाते हैं। तो एक तरह से ये अलायंस का भी फॉर्म करता है। और कई सारी कंट्रीज हैं जैसे जो आइडेंटिटी को एक तरह से ये फ्लूइड क्रिएट करता है। सर कास्ट आइडेंटिटी का ये है। और दूसरा है कि जो जातियां जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था उनको भी एक अपने को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। एक टर्मिनोलॉजी है हाइब्रिड इम्यूनिटी। यस सर। क्या बताऊं सर हाइब्रिड इम्यूनिटी। यस सर। रिसेंटली जो कोविड वगैरह चला था Yes, उसके sir. कॉन्टेक्स्ट में है। सर हाइब्रिड इम्यूनिटी सर जैसे उसको हर्ड इम्यूनिटी भी वो कहते हैं। तो सर वो क्या होता है कि कई चीजों से मिल के कंबाइंड होके क्रिएट होता है, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। यस सर। अभी ईयर ऑफ मिलेट मना रहा है कोई एक इंस्टीट्यूशन। यस सर। कौन सा इंस्टीट्यूशन में मना रहा है? सर FAO। अच्छा। यस सर। 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 5 मिलेट्स के नाम बताइए, उनके इंग्लिश नेम बताइए। सोरगम, सॉरी सर महिलाओं को समाज का आधी आबादी कहा जाता यस है, मैम। फिर भी पॉलिटिक्स में राजनीति में इतने पीछे इतनी कम संख्या में है। यस इसके मैम। पीछे के क्या कारण है? अगर इनको लाना है आगे तो उसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? मैम सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पहले एक जागरूकता लाने की जरूरत है महिलाओं के ही अंदर। जैसे मैम अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 33% रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक तरह से पति पंचायत बन चुका है। अगर महिला अगर सरपंच भी है या जिला पंचायत सदस्य भी है तो ऑफिस में उसके पति जाके बैठते हैं। तो ये जो एप्रोप्रिएटाइजेशन ऑफ पैट्रियार्की है, पहले इसको ब्रेक करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज है कि उनको जागरूक होना चाहिए। अपना सिविक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जैसे जैसे बढ़ेगी तो मैम फिर उस तरीके से जो विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में वो बढ़ेगा। पुरुषों की क्या इसमें भूमिका रहेगी बढ़ाने में? मैम पुरुष भी काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैम राजा राम मोहन रॉय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे बहुत से महान लोग हुए, MG रनाडे या और लोग हुए, लेकिन मेरा मानना है कि महिलाओं को इसमें आगे आना चाहिए। जैसे मैम वेस्ट में सफरगेट मूवमेंट हुआ था, जिससे क्या हुआ है कि 1920 में विमेन को वोटिंग की राइट मिली। उसके बाद से वहाँ पे धीरे धीरे जो है उनकी पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ी, लेकिन अभी भी काफ़ी लिमिटेड, अभी भी वो 25% के अंदर है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो 14% के आसपास है। तो मेरा मानना है कि एक कॉन्शियसनेस का जब इमरजेंस होगा उसके बाद चीज़ें सही हो जाएंगी। एक सवाल है, अभी हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति को CEO बनाया गया यूट्यूब का। यस मैम। नील मोहन, कहाँ का है? लखनऊ, किस जगह के पढ़े थे? सेंट फ्रांसिस। जहाँ पे ये स्कूल के और अभी रुचिरा कंपोज और मेघना पंडित, ये दो नाम इंटरनेशनली भी बड़ा पॉपुलर है आज की डेट में। कल से आज के बीच में इनका क्या है? ये लोग भी CEO बने थे। तो एक मेडिकल उसकी बनाई गई है और दूसरी किसी कंपनी की मेडिकल कंपनी में उनको CEO बनाया गया। और बेसिकली ये दोनों ही इंटरव्यू किया है लेडीज़ के बारे में बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन मैं पोस्ट कर रहा हूँ आपके सामने। जैसे कि आप एज एन SDM एक जगह पर तहसील में पोस्टेड हैं और आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उस प्रोजेक्ट में आपको एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिसको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो उसमें आपके पास जो ऑप्शन है उसमें एक आदमी है जो बहुत ऑनेस्ट है, यस लेकिन वो वर्क वाइज उतना रिफाइन नहीं है, उसका मतलब वर्क क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन एक आदमी है उसका वर्क क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत रिफाइन है, लेकिन वो करप्ट है यस और काफ़ी चर्चा है उसके बारे में। यस। तो आप किसको चुनेंगे? सर बेसिकली जो आपका केस स्टडी है वो कॉम्पिटेंस और ऑनेस्टी के बीच में है। तो सर मेरा मानना है कि जैसे ये दोनों जो व्यक्ति हैं, जैसे अब एक व्यक्ति है, दोनों को आइडेंटिफाइड है कि ये करप्ट है और ये ऑनेस्ट है। तो सर अब जैसे जो DOPT है उसके हिसाब से कहा जाता है कि पब्लिक ऑफिशियल्स में बेसिकली अगर हाई कॉम्पिटेंस है और हाई मोरल नहीं है उसके अंदर,
तो फिर वो किसी काम का नहीं है। अगर उसके अंदर अगर हाई मोरल है और एवरेज कॉम्पिटेंस है तो वो एक अच्छा यूटिलिटी उसका है। तो सर मैं इसी को मानते हुए जो ऑनेस्ट व्यक्ति हैं और थोड़े एवरेज हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप थोड़ा अपना स्किल जो है उसको इनहांस करिए और काम पे लगिए। काम प्रभावित होगा, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा टाइम पर तो आपको डांट पड़ेगी, आपका एडवर्स होगा बाद में तब। सर पहली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अगर ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट का डेफिनेशन जो है वो अपने काम से भी ऑनेस्ट हो सकता है। नहीं, मैंने पहले कंडीशन रख दी थी Yes, sir. उसमें जो है वो जो कैटेगराइजेशन हमने पहले अपना बता दिया था, जैसे उन्हीं 2 कंडीशन में है। तो सर अब जैसे एक कंडीशन, दूसरा अगर कंडीशन है, अगर मुझे अगर पहले से ये पता है कि ये व्यक्ति करप्ट है और लेकिन एफिशिएंट है तो सर मैं चेक एंड बैलेंस ये इंश्योर करूंगा कि करप्शन का जितना भी स्कोप हो वो सब मिनिमाइज हो जाए और काम जो है एक टाइमली पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो जाए। तो आपने तो चेंज कर दिया स्टैंड ऑफ नाम, हमने बोला था पहले। सर मैं दोनों केस पे एक्सप्लोर करूंगा और जो नहीं तो आपको दोनों में से एक को चुनना है। यस सर। किसको आप अपने टीम में शामिल करेंगे? सर अगर थ्योरेटिकली जाए, अगर जो डीओपीटी की जो नहीं थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली आप थियोरेटिकली प्रैक्टिकली आप कुछ भी समझिए, आपका रिजल्ट ऐसा है और आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि सब कुछ ठीक ठाक है। सर पहली चीज तो ये है कि करप्शन का जो एलिमेंट है उसको निगेट करने पे मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि उसको पहले एकदम निगेट कर दिया जाए और उसके बाद उसके अगली सर किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को के बारे में ये तो आप बता रहे हो ये करेंगे आप किसको करेंगे? यस सर। ये बताइए। अभी तक आपने वो नहीं बताया कि दस किसको भटक लेना रहे है। हैं। सर उस केस में सर जो ऑनेस्ट व्यक्ति है मैं उसी को चूज करूंगा। यस सर। ठीक है। एक सवाल छोटा सा और बताइए कि क्या आपको लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है जिस तरीके से यूक्रेन का रशिया का Yes, sir. ऊंचा कॉन्फ्लिक्ट, तो क्या कुछ ऐसा लगता है? मैम बेसिकली जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसमें क्या होता है कि फ्रंट हेड कोलिजन होता है, लेकिन मैम थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उस तरीके का नहीं होगा, लेकिन ये बेसिकली एक तरह से हाइब्रिड वॉर की तरह होगा जिसमें मतलब कि जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने अपने जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है उसको प्रैक्टिस करेंगी और उसी में उनके बीच में कोलिजन होगा। जैसे मैम रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है, अभी चाइना ने यूएस के यहाँ पे स्पाई बैलून और वो सारी चीजें किया। उसके बाद श्रीलंका के पास उनने एक अपनी बहुत बड़ी शिप खड़ी की थी जिससे वो इंडिया की भी जो न्यूक्लियर रीजन है उसकी वो रेकी कर रहे थे। तो मैम ये बेसिकली ऑन गोइंग है, लेकिन अभी इस पे कोई कंक्लूसिव नहीं है कि ये होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।